Hello, dear students. Welcome to the class today. Children, we are talking about the second chapter, Physical Features of India. And in these physical features, we have till now discussed about the Himalayan mountains. Today, we will be talking about the Eastern Ghats and the Western Ghats. Children, I wanted to show it to you on the map. Here you can see the map is given. Map happens to be one of the most important part to understand the complete physical system in our country. So when we understand this system, some points are very clear. So children, just go through it once and try to understand the concept of Eastern Ghats and Western Ghats and how the rains occur on such a large scale. Now, when you understand this, when it is clear to you, certain points are there which will be making the complete paths very, very simple. Okay, children? So, let us begin with the explanation. I'll be showing you the explanation. With these explanations, things would be more clear to you. Come, let's see. First wins. Western Ghats face orographic. Now, what is orographic? Orographic rains. It is because of the moist laden clouds that are blowing. ये जो मानसून winds आते हैं और पहाड़ों से जो टकराते हैं, यहाँ के जो पहाड़ हैं इससे जो टकराते हैं, इसके वजह से यहाँ पे ओरोग्राफिक रेन होता है. रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड्स टू राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट. ओरोग्राफिक रेन्स कहां से आ रहे हैं? बाय फेसिंग rain bearing moist winds, rain bearing moist winds in the western slope. Western slope में this is coming up. Western slope of the Ghats में बहुत बारिश होती है. केरला faces and Kerala witnesses extreme rainfall. काफी अच्छी वाली बारिश होती है. And Western Ghats में local names, different names are there. It is increasing from north to south. नॉर्थ में ना उतने पहाड़ नहीं है. साउथ की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं ना वैसे जैसे वेस्टर्न घाट्स में काफी अच्छे वाले पहाड़ हैं. पहाड़ हैं, पहाड़ क्या कहेंगे? पठार है इनफैक्ट. ठीक है. स्मॉल हिल्स आर देयर, हिली एरियाज आर देयर. सो वेस्टर्न घाट्स को बहुत सारे लोकल नेम्स हैं. वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय various names at local level. मतलब जो लोग यहाँ रहते हैं ना वो अलग अलग नाम से इन एरियाज को जानते हैं, इन एरियाज को बुलाते हैं. दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड हियर. अब नॉर्थ से साउथ की तरफ व्हेन वी आर मूविंग इन द वेस्टर्न घाट्स तो द स्लोप इज इंक्रीजिंग. नॉर्थ में कम है स्लोप. I'm sorry, the hilly areas are increasing. नीलगिरीज तक आ रहे हैं साउथ में, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है. And height of the Western Ghats increases from north to south. Heights of Western Ghats increases from north to south. Got it? नॉर्थ में कम है हिल्स, साउथ की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे बड़ा होता जाता है. हाईएस्ट पीक इन दिस रीजन इन द वेस्टर्न घाट्स, द हाईएस्ट पीक इज अनाईमुडी एंड डोडाबेट्टा. These are South Indian names.
तो ये ऐसे ही होते हैं. हाईएस्ट पीक in Western Ghats is Anaimudi. ये याद रखिएगा. This is GK point of view, very important. Name the highest peak in the Western Ghats. So you have to mention about Anaimudi, and height is 2,695 meters. Okay. And Dodda Beta is there, 2,637 meters. And Dodda Beta is 2,637 meters. बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. Okay. So these are two of the highest peaks. अब क्या है, ईस्टर्न घाट्स में भी तो कुछ पहाड़ हैं. There are some hills in the eastern Ghats also. सारे western Ghats में नहीं है. Anaimudi is very beautiful. Anaimudi जो है ना, साउथ में जब हम केरला की तरफ बढ़ते हैं, वहां पे it is one of the most beautiful peaks and very well known tourist spot. Okay, that is there. These are GK. ये बिल्कुल याद रखिएगा. डोड्डा बेटा एंड अनाईमुडी, highest peak in the Western Ghat. Mahendragiri is the highest peak in Eastern Ghats. ये लास्ट ईयर मैं आपको बताना चाहूंगी. दिस क्वेश्चन केम इन द लास्ट ईयर इन द हाफ ईयरलीज. हाफ ईयरलीज में क्वेश्चन आया था, चिल्ड्रन गॉट लॉस्ट. मैम ये क्वेश्चन आपने कहां से दे दिया था, ये तो पता ही नहीं था, ये तो पता ही नहीं था. प्लीज डोंट टेल मी ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, आई विल बी गेटिंग वेरी अनॉयड. ठीक है. सो महेंद्रगिरी इज देयर, 1501 meters. Highest peak. Very beautiful again. And अब यहाँ पे और भी हमको हिल्स मिल रहे हैं. द शेवरॉय हिल्स एंड जवाड़ी हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स. ये सारे आपके मैप में दिए हुए हैं. शेवरॉय हिल्स एंड because physical map में doing marking these hills are extremely important. So Shevaroy Hills and Jawadi Hills. अभी I'll show you in the map. मैंने कहा ना हर एक उसमें मेरे को मैप आपको दिखाना है. Are located in the southeast region में है, in the eastern Ghats. Got it? So you can understand that how important these small hills are. सबसे important अभी आप देखो, the famous hill stations, शुरू से जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ. From the very beginning, since I've started the Peninsular Plateau, I have been mentioning about these beautiful hill stations of the south. उदाग मंडलम, साउथ इंडियन है ना, तो वो उसी तरह के नेम्स हैं. अनाईमुडी, डोडा बेट्टा, ये सब साउथ के नेम्स हैं. दैट्स व्हाई इट इज ऑफ दिस फॉर्म. आप इसको याद रखिएगा. द मोस्ट फेमस hill stations of Udaga Mandalam. ये आपको लोकेट करना है. ठीक है. उदाग मंडलम है पॉपुलरली known as Ooty and Kodaikanal. Most famous places. Got it? Please remember. ऊटी और कोडाईकनाल जो है वो आपको लोकेट करना है. Now what happens, children?
ऊटी और कोडाईकनाल भी घूम लिया हमने. So we move towards the peninsular plateau, जो कि there are certain important features for which the peninsular plateau is very well known. पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम उसकी 2-3 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से जानते हैं. Because what happens is, I told you now that the oldest landform that exists in India, सबसे पुराना, अगर मैं हजारों साल नहीं कह सकते चिल्ड्रन, एक्चुअली इट इज लाखों साल पुरानी सॉइल है यहाँ पे. These are the million years ago these soil and these landforms were created, were made. So distinct feature इस peninsular plateau का है black soil area. The distinct feature of black soil area is Deccan Trap. चारों तरफ से लैंड ने इस मिट्टी को जकड़ा हुआ है एंड इट हैज होल्ड दिस लैंड पीस. ये लैंड पीस को यहाँ पे होल्ड करके रखा गया है क्योंकि इट इज सेड ये डेक्कन ट्रैप दैट इज देयर, पीपल से इट इज एज ओल्ड. लाखों साल पहले कभी वहां पे देयर वॉज सम वोल्केनिक इरप्शन. उधर के पहाड़ों में कहीं पे volcano has erupted due to which we have this kind of a soil there. नॉर्थ में तो आपको नहीं मिलता है, we do not get it in north, but in South India if we are getting this kind of a soil, it is because of the volcanic eruption. So the rocks here are igneous. The soil is formed due to volcanic eruption. अलग तरीके का सॉइल है यहाँ पे एंड यहाँ पे बहुत सारे पत्थर मिलते हैं आपको. These rocks that are there ना, rocks are igneous rocks. Got it children? Igneous rocks. ये माचिस जो बनती है, all these matchsticks and all these जितना भी आग से रिलेटेड चीजें हैं ना, इन्हीं रॉक पीसेस को पीस के इसका वो करके बना के बनते हैं, जिसमें इमीडिएटली कैच वो जो मैचिस का वो होता है ना उसके ऊपर भी वो मतलब द केमिकल दैट इज यूज्ड इज मेड आउट ऑफ दोज रॉक्स ओनली. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस, these ये rocks have been formed over lakhs and lakhs of years, thousands and thousands of years, and it is the responsible for the formation of black soil. So these rocks have denuded over time, okay, and is responsible for the formation of black soil, and is responsible for formation of black soil. अब ये समझो, there is this erosion feature that is there is called as denudation. क्या कहते हैं इसको? This is called as denudation. कि जो बहुत ही हजारों लाखों सालों से जो लैंड फॉर्म को these rocks, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, मिट्टी गिर रही है, तो इस रॉक से लग के जो पानी नीचे आ रहा है that is going and mixing in the soil. So the color texture of the soil, that is called as denudation. Rains happen, rocks are there, igneous rocks, the water flows in the soil and that soil gets the quality of that igneous rock. Are you understanding? Yes, water flows, rocks थोड़े ही water hold करके रखेंगे. That is denudation. So it has denuded over time
and because of that there is the formation of the black soil. Got it, children? And Aravalli hills are there western region में, जहां राजस्थान है वहां पे there are Aravalli hills and northwestern margin of the peninsular plateau. ऊटी से अब हम ऊपर की तरफ थोड़ा सा आ गए हैं. अब हम चलते हैं हमारे राजस्थान की तरफ. ब्यूटीफुल राजस्थान, मारो राजस्थान, पधारो मारे देश. It was just coming to my mind, so I just have shared it with you. Okay, so the Aravalli hills lie on the west. West में Aravalli hills है, and these hills are extending on the northwestern margins of peninsular plateau and extend to northwestern part of peninsular plateau. What is जो plateau region है ना, उसके north west में भी we find Aravalli ranges. मैंने कहा ना हम ग्रेजुअली एंड स्लोली बढ़ते हैं. ग्रेजुअली एंड स्लोली वी मूव फ्रॉम वन एरिया टू द अदर. डेक्कन प्लेट्यू इज वेरी बिग रीजन. पेनिनसुलर प्लेट्यू इज क्वाइट अ लॉन्ग रीजन. तो पेनिनसुलर प्लेट्यू से जब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे नहीं वेस्ट की तरफ, व्हेन वी आर मूविंग देन वी आर फाइंडिंग द डेजर्ट एरिया. अब डेजर्ट एरिया कैसे फॉर्म हुआ है? हाईली इरोडेड हिल्स. These are highly eroded hills. Erosion का activity बहुत हुआ, हवा बहुत तेज चलती है इधर. Got it? So these are highly eroded hills and are found as broken hills. Aravalli is not a continuous range. छोटे छोटे पहाड़ हैं, टूट टूट के बीच बीच में से पहाड़ हैं. Okay? So these are highly eroded hills. Got it? And are found as broken hills. And are found as broken hills. टूट टूट के हैं बीच बीच में से. Got it? आप इसकी एक्टिविटी को समझने की कोशिश करना. इरोशन हो रहा है, डेन्यूडेशन हो रहा है. These are the words that are formed because of the activities of wind and water. हवा की वजह से और पानी की वजह से जो लैंडफॉर्म चेंज हो रहा है, the landform that is changing or the landform that is forming because of the formation of water and air is called as denudation or erosion. So गुजरात से लेके दिल्ली तक साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में we find these ranges, these hills. So they extend from Gujarat to Delhi in southwest and northeast direction. Southwest में गुजरात है, ओके, एंड नॉर्थ ईस्ट में दिल्ली है. अरावली रेंजेस के नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की बात कर रही हूं. वी आर टॉकिंग अबाउट अरावली रेंजेस नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ओके, एंड नॉर्थ ईस्ट. हो गया भैया, आधा से ज्यादा भारत भ्रमण हो गया. कितना घूमोगे इंडिया? इतना सारा तो इंडिया घुमा दिया हमने. ठीक है, कहाँ पे क्या मिल रहा है? अब अगर जब when you will be going with your family to Ooty or towards the south, केरला जाओगे, कर्नाटका जाओगे, तो यू कैन से कि अरे ज्योग्राफी में पढ़ा था नीलगिरी हिल्स है, हिल्स में तो जाना ही है, थोड़ा सा लॉन्ग तोड़ के लाना, मुझे भी देना. गॉट इट?
यू नो द स्पाइसेस, साउथ वाले जो स्पाइसेस हैं, आहा, वो दोज स्पाइसेस अगर कमरे में ले आए ना तो पूरा कमरा वो स्पाइसेस से स्मेल महक जाता है. बेस्ट क्वालिटी स्पाइसेस रही. वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज देयर इन साउथ इंडिया ना, आई यूज टू आस्क हर टू ब्रिंग स्पाइसेस फॉर मी. तो वो जो लौंग और वो लेके आती थी. अभी शी शिफ्टेड टू साउथ. आई केम टू वाराणसी, शी शिफ्टेड टू साउथ. तो अभी वो वाले मसाले मुझे नहीं मिलते हैं, पहले जो मसाले मिलते थे. ओके, सो अब हम जब आ गए हैं, नाउ वी हैव कम टूवर्ड्स द डेजर्ट एरिया. यहाँ पे खत्म हो रहा है पेनिनसुलर रीजन. अब हम चलते हैं एंड पढ़ेंगे अबाउट द राजस्थान. ठीक है, मारो देश वेरी कलरफुल, वेरी ब्यूटिफुल एंड यस, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है बिकॉज ऑफ द डेजर्ट एरिया. लेकिन इंडिया है तो इट इज ब्यूटिफुल. अदर देन दैट देयर आर मेनी अदर थिंग्स टू लर्न अबाउट. वो अगले क्लास में करेंगे. अभी मैप दिखा दूं आपको. अनाईमुडी, डोडा बेट्टा एंड अरावली हिल्स, ये सारे आपको, आई नीड टू लोकेट इट ऑन द मैप. कम लेट्स सी द मैप. So students, map work करना है. We need to do the map work. इसके लिए I have taken out this map. All the time we have been talking about the second half of the peninsular plateau. ठीक है, कल जो हमने बात किया था स्टूडेंट्स, we have talked about the central highlands. ठीक है, ये सेंट्रल हाईलैंड्स हमने बात किया था नर्मदा रिवर के ऊपर. दिस इज द मालवा प्लेट्यू और ये बिल्कुल सेंटर में है, इंडिया के सेंटर में है. दैट्स व्हाई इट वाज एज सेंट्रल हाईलैंड्स. एंड अब जो है दैट वी आर डिसाइडिंग दैट वी विल बी टॉकिंग टुडे इज दिस डेक्कन प्लेट्यू. हम डेक्कन प्लेट्यू, पहले तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं. वी आर स्टार्टिंग विद द सतपुड़ा रेंज. सतपुड़ा रेंज इज देयर, जिसमें कि वी हैव द महादेव हिल्स. छत्तीसगढ़ यहाँ पे है एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इज हियर. गॉट इट? सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये सारी जगह आपको जानना जरूरी है. विंध्या रेंजेस एंड मालवा प्लेट्यू इज इन द सेंट्रल हाईलैंड्स. अरावली रेंज के बारे में बहुत सारा पढ़ा. वी हैव रेड अ लॉट अबाउट द अरावली रेंजेस. डेजर्ट में ये है एंड इट इज क्वाइट ब्रोकन इन बिटवीन. काफ़ी टूटा टूटा सा ये पहाड़ है, बट देन इट इज हैविंग लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल इन राजस्थान. राजस्थान के लोगों के ऊपर इसका बहुत असर पड़ा है. ओके, दैट इज देयर. अब हम नीचे आते हैं. नाउ वी कम टू द डेक्कन रीजन. पहले तो आप ये देख लीजिए, महानदी रिवर कल मैंने आपको दिखाया था. I had shown ये this Mahendragiri is the highest peak. Highest peak in the eastern Ghat is the Mahendragiri. ये आपको जानना ज़रूरी था. एंड यहाँ से जब हम नीचे आ रहे हैं, when we are coming towards the नीलगिरी, यहाँ पे we have the अन्नामलाई. ठीक है, एंड कार्डेमम हिल्स. अब देखिए यहाँ पे अन्नामलाई के नीचे में अनाईमुडी है ना. अनाईमुडी इज द बिगेस्ट हिली रेंज इन द वेस्टर्न घाट्स. एंड इसको यहीं पे वी हैव द कार्डेमम हिल्स. हा, क्या इलायची होती है वहाँ पे. कार्डेमम उसी के नाम पे ही पड़ा है. छोटी इलायची एंड द बड़ी इलायची दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. द बेस्ट क्वालिटी इलायची कम्स फ्रॉम दिस एरिया. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कार्डेमम हिल्स. एक एक्टिविटी दैट इज देयर, वन बिग एक्टिविटी दैट वाज देयर कि यू हैव टू लोकेट योर ऊटी एंड कोडाई कनाल. यस, ये मैं आपको चाहूंगी कि आप इसको जरूर करिएगा. जस्ट सी इट इज मेंशन्ड हियर. जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन. यस, ये देखो यहाँ पे सॉरी, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज हियर. ईस्टर्न घाट्स में this activity that is given, locate the famous hill stations of उदाग मंडलम. उदाग मंडलम एक्चुअली उद्योग मंडल है, लेकिन उदाग मंडलम इसको कहते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड एज ऊटी एंड कोडाई कनाल. ऊटी एंड कोडाई कनाल इसी जगह पे सिचुएटेड है. आपको फाइंड आउट करना है. ओके, पेनिनसुलर प्लेट्यू में यू हैव द ब्लैक सॉइल एरिया. डेक्कन ट्रैप है. किस लिए बना है ये हमने देख लिया है. बिकॉज ऑफ द डेन्यूडेशन ऑफ
रॉक्स 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 के ऊपर जो पानी नीचे गिर रहा है, ब्लैक रॉक्स आर हियर, तो उसके वजह से इस एरिया में आपको ब्लैक सॉइल ही मिल रहा है. ओके. देन वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन में पेनिनसुलर प्लेट्यू है. हाईली एंडेड हिल्स, दीज आर हाईली एंडेड हिल्स एंड ब्रोकन हिल्स हैं, छोटी छोटी पीसेस में बटे हुए हैं. गुजरात से लेके दिल्ली तक साउथ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दीज हिल्स आर अवेलेबल. ओके. हाँ, तो वेयर वी हैव स्टॉप, जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ से हम वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इंडियन डेजर्ट. This we will be doing in the next class tomorrow. Till then children, thank you so much and all the best to you.